Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, MCQ टाइप क्वेश्चंस के ये चैप्टर वाइज सीरीज मैं आपके सामने ला रही हूँ। आज हम देखेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अमालगमेशन ऑफ कंपनीज एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ कंपनीज के MCQ टाइप क्वेश्चंस। तो लेट अस बिगिन विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. As per accounting section 14, purchase consideration is what is payable to shareholders, creditors, debenture holders, shareholders and debenture holders. As per accounting section 14, purchase consideration shareholder को payable होता है, so option A is the correct answer. Next question, when amalgamation is in the nature of merger, the accounting method to be followed is equity method, purchase method, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट्स मेथड, कंसोलिडेटेड मेथड. जब भी अमालगमेशन मर्जर के नेचर में होता है तो अकाउंटिंग मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो होती है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट्स मेथड. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेस, द अकाउंटिंग मेथड टू बी फॉलोड इज इक्विटी मेथड, परचेस मेथड, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, कंसोलिडेशन मेथड. जब भी अमालगमेशन परचेस की नेचर में होता है तो हम अकाउंटिंग मेथड परचेस मेथड की यूज करते हैं, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अमालगमेशन इज सेड टू बी इन द नेचर ऑफ मर्जर इफ all assets and liabilities of transferor company are taken over by the transferee company. Business of transferor company is intended to be carried on by the transferee company. Purchase consideration must be paid in equity shares by the transferee company except for fraction shares. All of the above. अब अमालगमेशन जब भी मर्जर की नेचर में जाता है तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, ये सारे केसेस हमारे सामने होते हैं. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. Next, amalgamation adjustment account is opened in the books of transferee company to incorporate the assets of the transferor company, the liabilities of the transferor company, the statutory reserves of the transferor company, the non-statutory reserves of the transferee company. अमालगमेट एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ ट्रांसफरर कंपनी को, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, गुडविल अराइजिंग ऑन अमालगमेशन इज टू बी retained in the books of transferee company, amortized to income on a systematic basis, normally 5 years, adjusted against reserves or profit and loss account balance, all of the above. अमालगमेशन में जो कुछ भी गुडविल हम अराइज होती है तो उसे हम अमोर्टाइज कर देते हैं इनकम ऑन सिस्टमेटिक बेसिस में, नॉर्मली 5 ईयर्स के लिए. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, under pooling of interest method, the difference between the purchase consideration and share capital of the transferee company should be adjusted to general reserve, amalgamation adjustment account, goodwill or capital reserve account, none of the above. जब भी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं तो परचेस कंसिडरेशन एंड शेयर कैपिटल जो होता है ट्रांसफरी कंपनी का, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हम जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र करते हैं. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. Under purchase method, the difference between the purchase consideration and share capital of the transferee company should be adjusted to general reserve account, amalgamation adjustment account, goodwill or capital reserve, none of the. परचेस मेथड जब भी हम करेंगे तो परचेस कंसिडरेशन और शेयर कैपिटल का जो डिफरेंस होगा उसे हम गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, for amalgamation in the nature of merger, the shareholders holding at least dash or more of the equity shares of the transferor company becomes the equity shareholder of the transferee company. जब भी हम अमालगमेशन मर्जर में करते हैं तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एटलीस्ट 90% या फिर उससे ज़्यादा शेयर जो है वो ट्रांसफरर कंपनी के लेने होते हैं ताकि वो ट्रांसफरी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स बन जाए. सो ऑप्शन बी इज द 90% इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट,
accounting standard 14 is not applicable if when transferee company acquires transferor company and transferor company ceases to exist, separate entity is continues to exist, applied in all cases, none of the above. अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है वो अमालगमेशन के लिए है, एब्सॉर्प्शन के लिए है। तो ये जो सेपरेट एंटिटी जो होती है, जो कंटिन्यू करने वाली होती है, एग्जिस्टेंस में रहने वाली होती है, तो उस केस में ये अकाउंटिंग सेक्शन नहीं लगता। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A company limited and B company limited goes into liquidation and a new company X limited is formed. It is a case of अमालगमेशन। अमालगमेशन में क्या होता है, दो एग्जिस्टिंग कंपनीज जो हैं वो वाइंड अप कर लेती हैं, लिक्विडेशन में चली जाती हैं और एक सेपरेट नई कंपनी जो है वो फॉर्म हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे अमालगमेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the share capital to the extent already held by the purchasing company is closed by the vendor company by crediting it to share capital account, purchasing company's account, realization account. अब शेयर कैपिटल जो परचेसिंग कंपनी ने ऑलरेडी ले रखा है, तो उसे जब भी वेंडर कंपनी क्लोज करेगी तो उसे क्रेडिट कर देना होगा रियलाइजेशन अकाउंट को। रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले करता है हमारी अमालगमेशन एंड अब्सॉर्प्शन अकाउंट में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। When two or more companies carrying on similar business decide to combine, a new company is formed. It is called as अमालगमेशन। अगेन जैसे मैंने अभी बताया कि दो या उससे ज़्यादा कंपनीज डिसाइड कर लेती है म्यूचुअली कि उन्हें हमारी एग्जिस्टेंस ख़त्म कर देना है और नई कंपनी शुरू करनी है, तो वो अमालगमेशन में चली जाती है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर अमालगमेशन इज 14। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो 14 स्टैंडर्ड अमालगमेशन से रिलेटेड है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन अमालगमेशन ऑफ टू कंपनीज, both companies lose their existence, both companies continue, any one company continue, none of the above. अमालगमेशन में दोनों भी कंपनी का एग्जिस्टेंस लूज हो जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। When the net assets are less than the purchase consideration, the difference will be debited to goodwill account, debited to general reserve account, none of these. जब भी नेट एसेट कम होते हैं हमारी परचेस कंसिडरेशन से, तो जो डिफरेंस है उसे हमें ट्रांसफ़र कर देना होता है। गुडविल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि ये बनती है हमारी गुडविल। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाइल कैलकुलेटिंग परचेस कंसिडरेशन, डैश वैल्यूज ऑफ assets is to be considered. बुक वैल्यू, रीवैल्यूड प्राइस, एवरेज प्राइस, कैपिटल। अब जब भी हम परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करते हैं तो रीवैल्यूड जो प्राइसेस होते हैं उसे हमें कैलकुलेट करना होता है या कंसिडर करना होता है। बुक वैल्यूज जो होते हैं वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में देखते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अमालगमेशन आर ऑफ डैश टाइप्स 2, 3, 4, 1। अमालगमेशन 2 टाइप्स के होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय डैश % ऑफ शेयर होल्डर्स। अमालगमेशन अगर करना है तो कितने % शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए होता है, तो 75%, एटलीस्ट 75% शेयर होल्डर्स का अप्रूवल अमालगमेशन के लिए चाहिए होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Accounting Standard 14 covers only amalgamation of companies, firms and company, directors and partners. Amalgamation of companies जो है वो Accounting Standard 14 में cover होता है। Option A is the correct answer. The payment made to debenture holders should dash be included in consideration. Payment made to debenture holders should not be considered in purchase consideration. Option A is the correct answer. The approval by dash of shareholders is necessary for amalgamation in the nature of dash. अप्रूवल बाय 90% ऑफ शेयर होल्डर नेसेसरी होता है अगर हम अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर करते हैं, तो 90% शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेके हम मर्जर में अमालगमेशन कर लेते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The two methods of accounting for amalgamation are relevant for dash company: dissolved company, transferee company, liquidated company, formed company. अब टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग जो होती है अमालगमेशन की वो रिलेवेंट होती है ट्रांसफरी कंपनी के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Dash method provides that assets and liabilities should be recorded at book value by the new company.
अब जो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट होता है वो न्यू कंपनी वो उसके जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हम लेते हैं उसे बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड कर देती है. सो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Purchase method requires accounting for assets and liabilities at dash by transferee company. Plant and machinery, agreed or revised, underwriting commission, none of the above. अब परचेस मेथड जो है उसमें जो अकाउंटिंग करते हैं हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो है वो ट्रांसफररी कंपनी के एग्रीड यानी कि रीवैल्यूड या रिवाइज्ड प्राइसेस पर लिए जाते हैं. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Amalgamation adjustment account is applicable per dash method of accounting. Per cost, purchase, book value, none of the above. Amalgamation adjustment account applicable होता है per purchase method of accounting के लिए. Option B is the correct answer. अमालगमेशन इंक्लूड्स डैश रिकंस्ट्रक्शन. अमालगमेशन में क्या होता है? तो अमालगमेशन में एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है. कंपनीज जो है वो कंपनीज क्लोज हो जाती हैं और न्यू कंपनी स्टार्ट की जाती है. तो अमालगमेशन इज अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अमालगमेशन ऑफ डैश इज नॉट कवर्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14. कंपनीज, purchase, firms, none of the above. Amalgamation of firms is not covered under accounting standard 14. Option C is the correct answer. Arrangement between dash or more companies is necessary for amalgamation. अब अरेंजमेंट जो होता है वो एटलीस्ट 2 कंपनीज हमें चाहिए होते हैं, 2 या फिर उससे ज़्यादा, क्योंकि अमालगमेशन जो हम कर रहे हैं तो उसके लिए एटलीस्ट एक हमें चाहिए होता है. So 2 is the correct answer. Merger or absorption are schemes of dissolved, transferee, amalgamation, none of the above. Merger और absorption जो है वो amalgamation के schemes होते हैं. Option C is the correct answer. Amalgamation which does not fulfill conditions of merger is called as external, purchase method, pooling of interest, none of the above. अमालगमेशन जो कि मर्जर के कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता उसे हम कहते हैं परचेस मेथड. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. कैपिटल रिडक्शन इज डैश अ वैरायटी ऑफ अमालगमेशन. कैपिटल रिडक्शन जो होता है वो एक अमालगमेशन का टाइप नहीं है, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन जो है वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज में देखा जाता है. सो ऑप्शन बी नॉट इज द करेक्ट आंसर. The accounting for transferor company is in dash manner irrespective of type of amalgamation. ट्रांसफरर कंपनी का जो कुछ भी अकाउंटिंग है वो हमारे अमालगमेशन के इरिस्पेक्टिव सेम होता है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैन अराइज अंडर डैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग. सिक्योरिटी प्रीमियम, परचेस, सेम, नन ऑफ द अबव. परचेस मेथड जो होती है वहाँ पर हमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व देखने मिलता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इन अमालगमेशन द परचेसिंग कंपनी इज कॉल्ड एज डैश कंपनी. परचेसिंग कंपनी जो होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसफरी कंपनी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इन अमालगमेशन द वेंडर कंपनी इज कॉल्ड एज ट्रांसफरर कंपनी. वेंडर कंपनी जो है वो ट्रांसफर करती है उसका बिजनेस, इसीलिए उसे ट्रांसफरर कंपनी कहा जाता है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. द अमालगमेशन रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्टर्स. अमालगमेशन करने के लिए हाई कोर्ट का अप्रूवल जरूरी होता है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. द एक्सेस ऑफ नेट असेट्स वैल्यू ओवर कंसिडरेशन इज कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट और लॉस, गुडविल. अब जब नेट एसेट एक्सेस हो जाते हैं और हमारा परचेस कंसिडरेशन कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अंडर अमालगमेशन प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड टू प्रिफरेंस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स. हमारे अमालगमेशन में जो कुछ भी प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, दोनों भी चीज़ें हम क्या करते हैं, हमारी शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर देते हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अंडर अमालगमेशन लॉस ऑन रियलाइजेशन इज डेबिटेड टू, अगेन अभी मैंने बताया, इक्विटी शेयर होल्डर्स. When one of the existing companies take over business of another company or companies, it is known as एब्सॉर्प्शन. एब्सॉर्प्शन में एक कंपनी दूसरे कंपनी को एब्सॉर्ब कर लेती है, उसका बिजनेस टेक ओवर कर लेती है और वही उस कंपनी को होल्ड करती है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इन केस ऑफ डैश
one existing company takes over the business of another company and no new company is formed. अगेन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एब्सॉर्प्शन का, हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि एक जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो दूसरी कंपनी को एब्सॉर्ब कर लेती है और उसे होल्ड करती है, लेकिन उसे होल्ड नहीं करती तो उसे ओन कर लेती है, क्योंकि वो जो दूसरी कंपनी है वो दूसरी कंपनी क्लोज हो रही है। और जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो कुछ नई कंपनी नहीं बना रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग कंपनी में ही जो पुराना कंपनी है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, उसे समाया जा रहा है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। When company purchases the business of another company, dash comes into existence. जब एक कंपनी दूसरे कंपनी का बिजनेस परचेस कर लेती है तो उसे हम कहते हैं एब्सॉर्प्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। X company limited goes into liquidation and an existing company Z company limited purchases the business of X company. It is a case of again absorption. एक कंपनी है जो दूसरी कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर रही है। So option A is the correct answer. So friends, in this way we have discussed the various questions related to amalgamation of companies and absorption of companies. कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अमालगमेशन एंड अब्सॉर्प्शन, इसके सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर देख लिया है। हम लोग फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, उसमें हम देखेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी छोड़ें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप इन ट्यून। थैंक यू।